حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین چلتے نا کیسے گرایا خود کو جلتی ریت پر ہے چلتے نا کیسے گرایا خود کو جلتی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر میں نہ گھبرائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو ہے کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخسار کے وقت بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخسار کے وقت پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج
ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تک رہے، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تک رہے، اب نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، دور افتادے سفر سے لوٹ کر میں نے دور افتادے سفر سے لوٹ کر میں نے ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین، ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصینا ما القائلون ولا یحصی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسطور ميدان أرضه، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم قيام الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، برادران عزیز، عزاداران خدا، لہذا یہ مناسبت شہزادی زینب بنت علی سلام اللہ علیہا اللهم صل على محمد وآل محمد کی شہادت کے سلسلے میں یہ مجلس قلعہ زینبیہ پہ منعقد کی گئی ہے. مومنین، آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کرتے چلیں، اگر ہم کوئی بات کہیں تو ہماری بات کا وزن کچھ اور ہوگا، لیکن اگر وہی میری بات کوئی ہم سے ایک بڑا عالم دین کہے، بات وہی ہے لیکن بات کے اندر وزن پیدا ہو جائے گا. بے شک. لیکن وہی بات جو ہم نے کہی ہے، اگر کوئی سب سے بڑا عالم دین کوئی بات کہے تو بات کے اندر زیادہ وزن پیدا ہو جائے گا. بے شک. لیکن اگر وہی بات
जो हमने कही थी वही बात अगर कोई मुज्तहिद कहे तो बात के अंदर सबसे ज़्यादा वज़न पैदा हो जाएगा। इसलिए मौला ने भी फरमाया कि बोलो ताकि पहचाने जाओ। मौला ही फरमाते हैं कि जब इंसान तकल्लुम करता है, जब इंसान बोलता है तो बोलने से पता चलता है कि इसके अंदर कोयला छुपा हुआ है या इसके अंदर सोना छुपा हुआ है। इंसान बोले, मौला का कौल है, मौला का फरमान है, इंसान बोले ताकि पहचाना जाए। देखिए, सिर्फ और सिर्फ इल्म हासिल कर लेना बड़ी बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इल्म हासिल करते रहें, किताबें पढ़ते रहें, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि हुक्म ये है कि जितना आपने इल्म हासिल किया है उसके ऊपर आप अमल करें। अमल करने के बाद आप लोगों तक पहुंचाएं। आप किस तरीके से पहुंचाते हैं ये आपके ऊपर है। चाहे एक नफ़र आपको सुनने वाला हो, चाहे 2 नफ़र सुनने वाले हों, चाहे 3 नफ़र सुनने वाले हों, लेकिन हुक्म ये है कि जितना आपने जाना है उसको लोगों तक पहुंचाएं। देखिए, जब इंसान दौलत हासिल करता है, दौलत में क्या होता है, हमने दौलत कमाई, लेकिन दौलत का एक फ़लसफ़ा ये है कि दौलत हम चाहे जितनी कमा लें, लेकिन अगर हम उसको खर्च करेंगे तो वो खर्च होती जाएगी और दौलत हमारी कम होती जाएगी, है ना। माल हमने कमाया, माल हमने इकट्ठा किया, माल हम जमा करते रहे, लेकिन जब हमने माल को खर्च करना शुरू किया तो क्या हो गया, जब हम माल खर्च करेंगे तो हमारा माल जो है वो कम होता चला जाएगा। लेकिन वाहिद इल्म ऐसा है कि जिसको इंसान जितना खर्च करना चाहे खर्च करे, इसमें कमी नहीं आएगी बल्कि बढ़ता चला जाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले आवाज़ बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो क्या अज़ीज़ान गिरामी, इंसान बोले ताकि पहचाना जाए। बोलने से इंसान की मार्फत होती है, बोलने से इंसान की पहचान होती है, और यही वजह है कि नबी ने फरमाया। क्या देखिए अज़ीज़ान गिरामी, हमसे ज़्यादा तो नबी जानते थे, हर ज़ुबान जानते थे। नबी चाहते तो खामोश रहते, लेकिन नहीं, नबी खामोश नहीं रहे। नबी ने सबसे पहले, नबी की उम्र कितनी है, 63 साल उम्र है। नबी की उम्र कितनी है, 63 साल है। ऐलान नबूवत कब किया, 40 साल की उम्र में। ऐलान नबूवत जो किया है वो 40 साल की उम्र में किया है। अब 63 में से अब 40 निकालें, कितने साल बचे, 23 साल। 23 साल जो है नबी की नबूवत है। देखिए अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन आखिर 40 साल नबी ने क्या किया, ये इंसान को तदब्बुर करना चाहिए, तफक्कुर करना चाहिए, सोचना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए। लेकिन इसको जानने से पहले हमको चाहिए कि नबी की सीरत पढ़ें। देखिए, जब नबी की विलादत हुई, विलादत होने के बाद क्या हुआ, हमारे माशरे में, हमारे समाज में एक सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि अगर कोई देहात होता है या गांव होता है तो सब लोग उसको बुरा कहते हैं, बुरा कहते हैं। शहर को बहुत लोग बहुत अच्छा मानते हैं कि शहर, सिटी जो है ना सबसे अच्छी चीज़ है। लेकिन नहीं, नबी की विलादत कहाँ हुई, आप देखें मक्का में विलादत हुई है। लेकिन नहीं, तरबियत के लिए नबी को कहाँ ले जाया जा रहा है, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। तरबियत के लिए कहाँ ले जाया जा रहा है, परवरिश के लिए कहाँ लेके जाया जा रहा है। आज तमाम मुमिन का वाक़या सुना हुआ है, जनाब हलीमा खातून के ज़रिए से। कहाँ जा रहे हैं आखिर नबी, नबी जा रहे हैं एक गांव में, एक करिए में, एक देहात में जा रहे हैं नबी। क्यों, क्योंकि ताकि नबी परवान चढ़े, नबी का बचपना है। लेकिन कहाँ जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं। गांव में जाके नबी ने ये तो बता दिया कि शहर शहर है, गांव गांव है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी तदब्बुर करें, नबी की विलादत जो हो रही शहर में, लेकिन तरबियत और परवरिश के लिए जा रहे हैं गाँव में। क्यों, क्योंकि गांव की सबसे अच्छी जो चीज़ होती है वो होती है आबो हवा। क्योंकि शहर का माहौल ये होता है कि शहर में लोगों की सुबह जो होती है 10 बजे होती है। जब शहर वालों की सुबह 10 बजे होती है, गांव में तब तक दोपहर हो चुकी होती है। ये फ़लसफ़ा है गांव और देहात का कि शहर में जब तक सुबह होती है 10 बजे, गांव में जब तक आधी दोपहर हो चुकी होती है। और आप तमाम मुमिनीन माशाल्लाह बुजुर्ग लोग हैं, जानते होंगे, गांव के लोग सब लोग बैठे हुए हैं। या एक ये है, शहर में अगर बच्चा सोता रहे, भले ही 12 बजे तक सोए, उसकी अम्मी उसको मारने नहीं आएंगी। लेकिन गांव में जहां सुबह हुई, बिस्तर पे अगर मिले
कोई आए मारने के लिए ना आए, लेकिन अम्मी जरूर मारने के लिए आएंगी। क्यों अजीजान गिरामी? गांव का फलसफा ये है कि जब इंसान, इसी वजह से गांव के, आप देखिए गांव के बच्चों को देख लिए, जितना साल का एक गांव का बच्चा होगा उतने साल का आप शहर का बच्चा लेके आइए, अगर गांव वाला बच्चा शहर वाले बच्चे को तमाचा मार देना तो दोबारा उठने का नाम नहीं लेगा। क्यों? इसलिए गांव की आबो हवा बहुत ही ताज़ी रहती है। देखिए नबी भी, उनका बचपना, नबी का बचपना जो गुजरा वो एक गांव में गुजरा है, एक करिए में गुजरा है। तो नबी का ही ये फरमान है कि या अली अंता व शियतु का हुमुल फायजून, ऐ अली आप कामयाब हैं और आपके शिया कामयाब हैं। देखिए एक ज़मानत होनी चाहिए आज के दौर में, आज के हर दौर में हर कोई अपना अपना गिरोह लिए फिर रहा है। मुल्ला अलग गिरोह लिए फिर रहा है कि हम कामयाब हैं, मौलवी अलग गिरोह लिए फिर रहा है कि हम कामयाब हैं, फला साहब बड़ा सा मामा लगा के वो अलग फिर रहे हैं कि हम कामयाब हैं, फला साहब टोपी लगा के अलग फिर रहे हैं कि हम कामयाब हैं। लेकिन अजीज़ान गिरामी, नबी ने एक सनद दी है, या अली अंता व शियतु का हुमुल फायजून, ऐ अली आप कामयाब हैं और आपके शिया कामयाब हैं। लेकिन अजीज़ान गिरामी, मुसलमानों को चाहिए कि इस हदीस के ऊपर तदब्बुर करे, तफक्कुर करे, सोचे। यही वजह है नबी ने सनद दे दी। क्या सनद दी? या अली अंता व शियतु का हुमुल फायजून, ऐ अली आप कामयाब हैं और आपके शिया कामयाब हैं। तो इसका मतलब ये है जो ये चाहता है कि कामयाबी पाए उसको चाहिए कि अली से मोहब्बत करे, अली से मोहब्बत करे, अली से, क्योंकि लोगों ने अली से मोहब्बत करने का नाम ही शिया समझ लिया है। अली से मोहब्बत करने का नाम ही लफ्ज़ शिया समझ लिया है कि अगर शिया कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये शियाने अली होगा। लेकिन नहीं अजीज़ान गिरामी, तारीख में दो शिया गुजरे हैं, एक है शियाने माविया, एक है शियाने अली। तारीख में दो शिया गुजरे हैं, दो शिया हैं, एक है शियाने माविया, एक है शियाने अली। अब आपको देखना ये है कि ये शिया कौन सा है, कहीं शियाने माविया तो नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग शियाने अली का लिबास पहनकर शियाने माविया के गिरोह लोग शियाने अली में आ गए हैं। लेकिन अब हमको देखना ये है कि आखिर ये शिया कौन सा है, शियाने अली है या शियाने माविया है, हमको तदब्बुर करना चाहिए। अब देखिए अजीज़ान गिरामी, नबी की ये हदीस अपने सामने रखिए, या अली अंता व शियतु का हुमुल फायजून, ऐ अली आप कामयाब हैं और आपके शिया कामयाब हैं। अब लोगों ने, जिन्होंने अली को अपना बिला फसल खलीफा माना, जिन्होंने नबी के बाद बिला फसल अली को अपना पहला खलीफा माना, पहला जानशीन माना, वो लोग कामयाब। अब लोगों में इसमें एक और गिरोह बना, एक गिरोह ने कहा हम नहीं मानते, आ गए कमरे में। अब वोटिंग हुई, वोटिंग में होना ये चाहिए कि वोटिंग होती है 7 लोगों में, मिसाल के तौर पे वोटिंग होती है 7 लोगों में कि जिसको 4 वोट चले जाएं वो ज़्यादा, जिसके 3 वोट रहे वो कम। फलसफा समझिए क्या हुआ आखिर सकीफा में, क्यों बुनियाद रखी लोगों ने, जिसके 4 तरफ, जिसके 4 वोट हो वो ज्यादा, जिसके 3 वोट हो वो हारा हुआ है। जाहिर सी बात है क्योंकि इलेक्शन किया जा रहा है ना। अब नहीं, फुला साहब ने चालाकी में क्या किया, कहा ऐसा नहीं होगा, कैसा होगा, कहा 6 लोग थे सकीफा में, 6 लोग थे, कहा जिसकी तरफ फला साहब होंगे वो, जिसको ये मुंतखब कर ले वो खलीफा और जानशीन बनेगा। हमने कहा अच्छा ठीक है, तुमने कहा, हमने माना, ठीक है। अब ये कायदे कानून जो है ना, इलेक्शन चलना चाहिए, क्योंकि अगर कोई पीएम बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, वोटों से सिर्फ और सिर्फ नहीं होता, वोट दिए जाते हैं। अब एक पीएम दूसरे पीएम को मुंतखब नहीं कर सकता, ये कायदे कानून है इलेक्शन का कि एक पीएम दूसरे पीएम को, जैसे आजकल कोई भी पीएम हो ये नहीं कह सकता मेरे बाद ये पीएम होंगे, नहीं कह सकता, उसके लिए भी शर्त है, इलेक्शन होगा। अब ये होना ये चाहिए कि फला साहब ने कहा कि ये होंगे, वो बन गए पहले खलीफा। जब वो पहले खलीफा बने तो चाहिए ये था कि जब दूसरे की बारी आती उसके लिए भी इलेक्शन होता, लेकिन नहीं, उन्होंने अब्बा की विरासत समझ लिया। उन्होंने कहा नहीं,
ऐसा नहीं ये मेरे बाद ये फला होंगे। तो पहले कौल तो ये इनका बातिल हो गया कि कोई भी हाकिम लोगों के बनाने से नहीं बनता जब तक अल्लाह ना बनाए। और अजीज़ान गिरामी, लोगों के हाकिम बनाए हुए और अल्लाह के बनाए हुए हाकिम में भी ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। वो फ़र्क ये होता है कि जिन लोगों ने अपना इमाम फला को बनाया, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, जिन लोगों ने फला को अपना इमाम बनाया, उसी का इमाम अल्लाह के बनाए हुए इमाम के पास आया और कसीदे पढ़ने लगा। क्या कि अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। सुभान अल्लाह। ये लोगों के बनाए हुए इमाम थे कि जो अल्लाह के बनाए हुए इमाम के कसीदे गा रहे हैं कि अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। और अजीज़ान गिरामी, यही वजह है जब खुद लोगों के बनाए हुए खलीफा की जिंदगी अली के बिना नहीं गुजर सकती, नहीं निजात पा सकते, तो लोग कैसे निजात पा सकते हैं? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। है ना अजीज़ान गिरामी? तो ये अली का बुग़्ज़ जो है ना, अली के बुग़्ज़ में लोगों ने क्या क्या कर डाला। तारीख उठा के देखिए, अली की दुश्मनी में लोगों ने अपना कुछ नहीं बिगाड़ा, अपने साथ में अमाल भी बिगाड़े हैं। तारीख उठा के देखिए, तारीख में है क्या लोगों ने अली के बुग़्ज़ में सुबह की नमाज 2 रकत की जगह 4 रकत पढ़ाई। सुभान अल्लाह। अली के बुग़्ज़ में लोगों ने जुमे के बजाय बुध के दिन पढ़ाया। क्यों पढ़ाया? अली के बुग़्ज़ में पढ़ाया। और ये भी जो अली के बुग़्ज़ का जो चला है ना, कहाँ दावते ज़ुल अशीरा से चला, दावते ज़ुल अशीरा से चल के कहाँ तक आ गया? करबला तक आ गया। आप लोग किले ज़ैनबिया पे बैठे हो, यहीं के ऊपर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सवाल किया था, तुम लोग मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? क्या मैंने शरीयत मोहम्मदी को तब्दील कर दिया है? क्या मैंने हलाल मोहम्मदी को हराम करार दे दिया है या हराम मोहम्मदी को हलाल करार दे दिया है? सबने एक साथ होकर जवाब दिया, कहा नहीं। कहा क्यों कत्ल करना चाहते? कहा इस वजह से कि अरे बाप का बुग़्ज़ मेरे दिलों में, अली की दुश्मनी करबला। आप तमाम मुस्लिम किले ज़ैनबिया को बैठे हुए, ये किले ज़ैनबिया जो आप तमाम मोमिनीन देख रहे हैं, क्यों कहते हैं इसको किले ज़ैनबिया? हम लोग सिर्फ और सिर्फ आते हैं, ज़ियारत करते हैं, चूमते हैं, चले जाते हैं, सिर्फ इतना समझते हैं कि ये किले ज़ैनबिया है। अगर आपको जानना है कि इसको किले ज़ैनबिया क्यों कहते हैं, यहाँ जरी के ऊपर, यहाँ के ऊपर, जहाँ के ऊपर हम लोग ज़ियारत करते हैं, इसके ऊपर हाथ रखिएगा और आँखों को बंद करके 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को तसव्वुर करिएगा। किले ज़ैनबिया इसको इसी वजह से कहते हैं क्योंकि यही वो मकान था जहाँ से एक बहन अपने भाई के गले के ऊपर चलता हुआ खंजर देख रही थी, चलता हुआ खंजर देख रही थी। मालूम है अज़ादारों, ये किले ज़ैनबिया आज भी बुलंद है इस वजह से कि जब खैमा गाह से निकल के हुसैन की गरीब बहन ज़ैनब इस सरजमीन पे, यहाँ पे इस मकाम पे आई है ना, तो इसने जनाब ज़ैनब ने इस सरजमीन से एक जुमला कहा, ऐ करबला की ज़मीन तो इतनी बुलंद हो जा कि मैं अपने भाई को देख सकूं, मेरा भाई नज़र नहीं आ रहा। हाँ अज़ादारों, तारीख बताती है करबला की ये ज़मीन बुलंद हो गई। इधर करबला की ज़मीन का बुलंद होना था, उधर इमाम हुसैन के गले के ऊपर शिब्र खंजर चढ़ा रहा था। जैसे इमाम हुसैन की नज़र अपनी गरीब बहन के ऊपर पड़ी, क्या देखा कि गरीब बहन ज़ैनब खैमे से बाहर निकल के मेरा ये मंजर देख रही है। जब इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ करबला की ज़मीन तू इतनी नीचे चली जा कि मेरी बहन ये मंजर ना देख सके, अजरकुम अल ज़हरा। हाँ ज़ादारो, उधर करबला की ज़मीन नीचे हुई, इधर करबला की ज़मीन बुलंद हुई। अरे करबला की ज़मीन ही नहीं बुलंद हुई, पता है
आज़ादारों, असर के बाद हुसैन का सर तन से जुदा हो चुका है। अजरकुम अल ज़हरा। आज़ादारों, दिल खोल के मातम कर लीजिए, क्योंकि ये उस बीबी की शहादत है कि जिसको शरीकतुल हुसैन कहा जाता है, जिसको शरीकतुल हुसैन कहा जाता है। आज़ादारों सुनिएगा, जब शाम गरीबा आती है ना, एक औरत आखिर कितनी मजबूर होती है, कितनी लाचार होती है। अल्लाह ने आप सबको ज़ौजा अता की है, अल्लाह आप सबकी ज़ौजा को सलामत रखे। आज़ादारों, मालूम है, सिर्फ तसव्वुर करिएगा एक औरत किस कदर लाचार होती है। लेकिन मेरा सलाम हो उस बीबी के ऊपर जो एक खातून तो है, लेकिन साथ में शरीकतुल हुसैन भी है। सिर्फ एक खातून नहीं है, वो अब्बास भी है। सिर्फ एक खातून नहीं है, वो कासिम भी है। सिर्फ एक खातून नहीं है, वो अली अकबर भी है। सिर्फ एक खातून नहीं है, वो औन मोहम्मद भी है। आज़ादारों, जब शाम गरीबा आई है ना, खैमों में आग लग चुकी, खैमे में जब आग लग चुकी है ना, अब ज़ैनब मालूम है, अब ज़ैनब नहीं रही, ज़ैनब अब्बास बन गई है। ज़ैनब अब्बास बन गई है। आज़ादारों, ज़ैनब मालूम है काफिले की निगाहदार बनी हुई है, काफिले की सालार बनी हुई है। आज़ादारों सुनिएगा, बस तमाम कर रहा हूँ मजलिस को, क्योंकि आज़ादारों आप तमाम मोमिन जानते हैं ये कितनी मुसीबत की तारीख है, ये कितनी मुसीबत की तारीख है। आज़ादारों, ज़ैनब इधर काफिले की सालार बनी हुई है, क्या देखा है घुड़सवार चला आ रहा है, एक घुड़सवार चला आ रहा है। तभी ज़ैनब ने आगे बढ़ के कहा, अरे आने वाले ठहर जा, तुझे पता नहीं है कि यहाँ पे कौन है। लेकिन आने वाला ना रुका। तभी ज़ैनब आगे बढ़ी, कहा आने वाले ठहर जा, तुझे पता नहीं है मैं हुसैन की बहन हूँ। आने वाला ना रुका, आने वाला चलता रहा। तभी ज़ैनब ने बुलंद आवाज से कहा, आने वाले ठहर जा, तुझे पता नहीं है मैं अब्बास की बहन हूँ। तुझसे अब्बास की बहन कह रही है। आज़ादारों, लेकिन आने वाला ना रुका। जब आगे बढ़ा ना, तभी ज़ैनब ने घोड़े की मिहार को पकड़ना था, लगाम को जैसे ही पकड़ा, तभी घुड़सवार ने अपने चेहरे से पर्दा हटाया। कहा, ज़ैनब तुमने नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा बाबा अली हूँ, मैं तुम्हारा बाबा अली हूँ। आज़ादारों, ये मंजर मालूम है, जनाबे सकीना दूर से खड़े होके देख रही थी, और फौरन ही कहा, दादा अली मुझे माफ करना, अपने अपने होते हैं, गैर गैर होते हैं। आज जब आपकी बेटी अकेली थी, उसने नजफ का रुक करके आवाज दी, आप नजफ से चले आए। अरे दादा अली, उस वक्त आप कहाँ पे थे जब मेरे बाबा के गले पे खंजर चल रहा था? मैंने नजफ का रुक करके आवाज दी थी, या अली अदरिकनी, लेकिन आप मदद को ना आए। अजरकुम अल ज़हरा। आज़ादारों सुनिएगा, बस तमाम कर रहा हूँ मजलिस को। ये काफिला मालूम है 11 मुहर्रम को असीर किया गया, नौ के नेज़ा पे सरबलंद करके ले जाया गया। कहाँ? करबला से कूफा से शाम। आज़ादारों सुनिएगा, मालूम है माँ होती है ना, आखिर माँ ने अपने दोनों बच्चे हुसैन के ऊपर कुर्बान कर दिए। औन मोहम्मद को कुर्बान किया, लेकिन मालूम है कभी मातम नहीं किया, औन मोहम्मद का मातम नहीं किया। करबला से चली, लेकिन औन मोहम्मद का मातम नहीं किया, हुसैन का मातम किया। कूफे में मजलिस हुई, कूफे में ज़ैनब ने खुतबा दिया, हुसैन का मातम किया, लेकिन औन मोहम्मद का मातम नहीं किया। शाम में पहुँचे, दरबार शाम के ऊपर ज़ैनब ने हुसैन के ऊपर आंसू रोए, लेकिन औन मोहम्मद का मातम नहीं किया। आज़ादारों, वो मंजर भी आया कि जब इस काफिले को रिहाई मिलने के बाद ये कहा गया, या तो यहाँ रहो या तो मदीने चले जाओ। आज़ादारों, ज़ैनब मालूम है अब मदीने जा रही है। मदीने जब पहुँची है ना, आज़ादारों सिर्फ एक जुमला मसाज का पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद मजलिस को तमाम कर रहा हूँ। जब मदीने पहुँची है ना, मदीने में जब अपने दरवाजे के ऊपर पहुँची, तमाम कर रहा हूँ मजलिस को, दरवाजे के ऊपर पहुँची, तकुल बाब करके घर के आंगन में सहन
में बैठी, क्या देखा, छोटे छोटे बच्चों के खिलौने नजर आए। ज़ैनब ने मातम करना शुरू किया, कभी औन का मातम करती है, कभी मोहम्मद का मातम करती है। छोटे छोटे मुसल्ले देखे, औन मोहम्मद का मातम किया। अरे ये मंजर जनाब अब्दुल्ला ने देखा, कहा ऐ बीबी तू यहाँ पे बैठ के गिरिया न कर, ऐ ज़ईफा तू यहाँ पे बैठ के गिरिया न कर, तुझे पता नहीं है कि मेरे घर वाले सब लोग परदेश में हैं। अरे इतना सुनना था। ज़ैनब ने अपने फौरन ही बाल हटाए, फौरन ही बाल हटाना था। कहा ऐ अब्दुल्ला तुमने भी मुझे नहीं पहचाना, मैं करबला से कूफा, कूफा से शाम, दर दर फिराती रह गई, दर दर फिराई गई। मैंने चादर का सवाल किया, किसी ने चादर ना दी, कोई ना मुझे पहचान सका। आज ये गरीब ज़ैनब अपने बेटे औन मोहम्मद का नाम जिंदगी रहेगा, अकबर का है कलेजा ज़ैनब के आंसुओं में, क्या देखती है ज़बरा ज़ैनब के आंसुओं में। सुगरा नजर उठाओ, कासिम का हाल देखो, सुगरा नजर उठाओ, कासिम का हाल देखो, बिखरा हुआ है लाशा ज़ैनब के आंसुओं में, क्या देखती है ज़बरा ज़ैनब के आंसुओं में। अब्बास के बुरीदा हाथों की दास्तां है, अब्बास के बुरीदा हाथों की दास्तां है। बहता है गम का दरिया ज़ैनब के आंसुओं में, क्या देखती है ज़बरा ज़ैनब के आंसुओं में। अब और मोहम्मद की याद आ रहे हैं, अब और मोहम्मद की याद आ रहे हैं। होने लगा इज़ाफ़ा ज़ैनब के आंसुओं में, क्या देखती है ज़बरा ज़ैनब के आंसुओं में। बेपर्दगी का आलम कैसे अदील लेखे, बेपर्दगी का आलम कैसे अदील लेखे, खुद देख ले ज़माना ज़ैनब के आंसुओं में, क्या देखती है ज़बरा